أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف نگیشن، اب جملہ اسمیہ اور فعلیہ تو ہم کر چکے ہیں آلریڈی، تو یہ تھوڑے سے اور اس میں ہے کہ اس میں نگیشن استعمال ہوتی ہے، کبھی ایک ورڈ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم آج ریویو کریں گے۔ تو آج کا لیسن آسان ہی ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے کانسیپٹس۔ تو ابھی تک ہم فعلیہ جملہ اور اسمیہ جملہ، تو فعلیہ جملہ کے ہم نے تینوں کر چکے ہیں، ماضی، مضارع اور مضارع فیوچر۔ پھر ہم نے جملہ اسمیہ ما کے ساتھ اور لیسا کے ساتھ دو دو ویریشنز ہیں، اور سب سے اسٹرانگ ویریشنز کون سی تھی؟ ما پلس با، خبر کے ساتھ با آتا ہے جس میں، اور خبر نہیں ہے تو پھر با والا نہیں بنتے۔ تو لیسا لیسا ہم نے پڑھا تھا نا کل، لیسا تو لیسا ہے تو یہ اسم ماضی کی طرح نا، فعل ماضی کی طرح لیسا، اسی طرح فعل ماضی کی طرح حصہ ہے، ہوا لیسا، ہما لیسا، ہم لیسو، سارے بنتے ہیں 14، لیکن اس کا کوئی مضارع ورژن نہیں ہوتا، لیسا یلیسو کوئی ورژن نہیں ہوتا، صرف یہ ماضی میں ہی ہوتے ہیں سارے، لیکن میننگ اس کی کیا ہوتی ہے؟ وہ نہیں ہے، میننگ ہم اس کی پریزنٹ میں کرتے ہیں، وہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کا لیکن مضارع ورژن کوئی نہیں ہوتا، یہ اسپیشل کائنڈ آف ہیں کہ یہ صرف اسی میں استعمال ہوتے ہیں، اس کا صرف بھی نہیں ہوتا، تو یہ صرف لیسا نگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کے لیے۔ اور کئی دفعہ لیسا جب استعمال ہوتا ہے نا، کبھی ہم کئی دفعہ کوشچن ہم پوچھتے ہیں نا، ایزنٹ اٹ، ناٹ بھی یوز کرتے ہیں، کیا نہیں ہے، تو اس میں بھی لیسا استعمال ہوتا ہے، اس کے شروع میں حمزہ آ جاتا ہے تو الیسا، کہ کیا نہیں ہے، جیسے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے، تو الیسا، تو آ کے ساتھ کوشچن اس کو بنا کے، جیسے ایزنٹ ہوتا ہے نا، ایزنٹ اٹ، تو ایزنٹ اٹ بن جاتا ہے، یہ کوشچن اگر بنانا ہو تو کافی آپ دیکھیں گے کہ معنی ایسے استعمال ہوتا ہے، لیسا استعمال ہوتا ہے جب ایزنٹ اٹ کا سینٹنس بنانا ہو۔ تو آج ہم اس کی نگیشنز یوز ہوتی ہے کچھ اور سینس میں بھی، کہ پورے جملے کو تو نہیں نگیٹ کرتے ہم، لیکن کچھ دفعہ کچھ ورڈز استعمال کرتے ہیں، کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے نا، اس میں کہ اس کے لیے بھی نہیں استعمال کرتے ہیں، لیکن پورا جملہ نہیں ہے وہ، تو ایک فریگمنٹ ہے جس کے ساتھ ہمیں لا، اس میں لا استعمال ہوتا ہے، ما یا لیسا استعمال نہیں ہوتا، لیسا اور ما پورے جملے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو لا پلس اسم، تو اس کے دو قسم کے ہوتے ہیں، لا پلس اسم، ایک کو ہم کہتے ہیں کہ لا نافیہ، سمپل لا نافیہ ہے کہ دیر از نو، جیسے دیر از نو ہارم، دیر از نو سین، اس طرح کے جملے، لیکن یہ پورا جملہ نہیں ہوتا، یہ درس جسٹ اے فریگمنٹ کہ دیر از نو ہارم۔ اور دوسرا ہوتا ہے جس میں ہم جیسے یہ ہے اگزامپل اس کے ہے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعت، تو لا کے ساتھ یوزلی رفع ہی ہوتا ہے، اور اس پہ وہ لائٹ بھی نہیں ہوتا، لائٹ ہوگا اگر وہ مضاف علیہ ہو، ادروائز وہ ہیوی ہی آئے گا۔ تو اس میں اب اگر ہم دیکھیں تو اصل میں تو جملہ فعلیہ ہے، من قبل این یاتی یوم، جب وہ دن آ جائے، تو اس کے اندر پھر تھوڑے کچھ الفاظ کے ساتھ لا استعمال ہوا ہے، کہ اس سے پہلے کہ جب دن آ جائے کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، ولا خلتن، اور اس میں کوئی دوستی بھی نہیں ہے، ولا شفاعتن، کوئی شفاعت بھی نہیں ہے، تو اس طرح لا درمیان میں بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ سینٹنس ہوتے ہیں اس میں ولا فی السماوات ولا فی الارض، اس طرح لا آ جاتا ہے، تو وہ ایسے اس میں لا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ جسٹ فریگمنٹ، اس کو ہم نہیں کر کے ٹرانسلیشن کرتے ہیں، تو انگلش میں دیر از، اس کی ٹرانسلیشن بن جاتی ہے اکثر کہ دیر از نو ٹرانزیکشنز، نو فرینڈشپ اینڈ نو شفا۔ اور دوسرا اس کی ہوتا ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جس کو کہتے ہیں لا نافیہ للجنس، تو اس میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ لا پلس اسم، اور اسم کون سے والا ہونا چاہیے؟ اس کی دو پراپرٹیز ہوتی ہیں اس اسم کی، ایک تو لائٹ ہوگا اور ایک وہ نصب ہوگا، تو اگر لا پلس
लाइट नसब इसम आ जाए तो उसका मतलब होता है कि एब्सोल्युटली नो है, जिसको हम ला नाफिया लिल जिन्स कहते हैं, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला के बाद इलाहा नसब भी है और ज़बर भी है, नसब है और लाइट भी है, ला इलाहा। तो देर इज एब्सोल्युटली नो इलाह, नो गॉड। इसी तरह ला रईबा फीही, देर इज एब्सोल्युटली नो शक, द रईबा फीही, कि इसमें कोई बिल्कुल भी शक नहीं। तो ला रई बुन होना था नॉर्मल, लेकिन ला रईबा इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह ला इकराह फिद्दीन, के देर इज नो फोर्सिंग, के फोर्स नहीं कर सकते दीन में, एब्सोल्युटली नो फोर्सिंग। और इसी तरह और एग्जांपल है ला मुबद्दिल अली कलिमाती। तो इसमें आप देखेंगे इसम सारे लाइट हैं और नसब इस्तेमाल हुए हैं। जबकि ऊपर की एग्जांपल में क्या था, हैवी था। तो क्यामत के दिन का जो बयान आया है उसमें ला बय्युन फीही वला खुल्लतुन वला शफाअतुन, लेकिन उसमें एक्सेप्शन हो सकती है। ला का मतलब एब्सोल्युटली नॉट नहीं है, कि शफात भी हो सकती है उस दिन, जैसे कि हमें पता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे, कुछ और लोग भी शफात करें, दोस्ती भी काम आ सकती है, कुछ सरकमस्टांसिस में खरीदो फरोख्त भी कुछ हो सकती है, कि नेकियों की ट्रांजैक्शंस होंगी। तो इसमें ल- ला नाफिया लिल जिन्स इस्तेमाल नहीं हुआ है। जबकि ला नाफिया लिल जिन्स में जब नसब और लाइट होता है तो इट मीन्स कि एब्सोल्युटली नॉट। तो दोनों में तो फिर ला नाफिया में कहता है कि रूम ऑफ एक्सेप्शन होती है, कि उसमें देर इज रूम फॉर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हो सकती है, ये नहीं है कि हमेशा ये नो है। लेकिन नाल नाफिया लिल जिन्स में क्या होता है कि देर इज नो रूम फॉर एक्सेप्शन। इसी तरह हम उम्रा और हज के लिए जाते हैं, तलबिया पढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं उसमें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक, ला शरीका, ला शरीका कहते हैं ना, उसमें भी शरीक हम नसब इस्तेमाल करते हैं और लाइट इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये का अंता वाला का नहीं है, ये शरीक का, इसका वर्ड का पार्ट है शरीका, शरीक होना किसी का। तो ला शरीका लक, के अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है, एब्सोल्युटली नो, नो पार्टनर। तो ये दो नेगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें ला इस्तेमाल होता है, मा और लैसा नहीं होता है। तो ये एक छोटे जुमले के अंदर किसी फ्रेगमेंट को नफी करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये पूरा जुमला खुद से नहीं होता है। तो उसके लिए हम ला इस्तेमाल करते हैं। मा और लैसा पूरे जुमला इसमिया को नेगेट करता है। तो ये हम पहले भी एक दफ़ा पढ़ चुके हैं, तो जस्ट रिवीजन हो गई इसकी भी। अब एक और पैटर्न है कि इसको शेयर टूल इसलिए कहते हैं कि ये जुमला फेलिया और जुमला इसमिया दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो चाहे जुमला फेलिया हो या जुमला इसमिया हो, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं। इस दो पैटर्न्स हैं। तो ये नेगेशन होती है एम्फेसाइज करने के लिए। कई दफ़ा नेगेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको नो नो कह रहे हैं, बल्कि उसको एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि तुम एक रसूल हो। तो ये सिंपल एक जुमला इसमें है, तुम एक रसूल हो। लेकिन इसको अगर आपने एम्फेसाइज करना हो ना, तो हम इसको लिख सकते हैं नहीं हो तुम मगर एक रसूल। तो इसमें हमने नहीं तो इस्तेमाल किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम एक रसूल नहीं हो। लेकिन इसने क्या किया है, नहीं और मगर ऐड करने से एम्फेसिस बढ़ गया है, मतलब चेंज नहीं हुआ है। जुमला वही है, तुम एक रसूल हो। मीनिंग, जो एक्चुअल मीनिंग है, जो एक्चुअल कोर मीनिंग है, वो यही है ना कि तुम एक रसूल हो। लेकिन नहीं हो तुम मगर एक रसूल, वो एम्फेसिस के लिए है। लेकिन मतलब उसका उसका कोर मीनिंग सेम है। इंग्लिश में भी हम इस्तेमाल करते हैं, यू आर ए मैसेंजर अगर होगा तो यू आर नथिंग बट ए मैसेंजर, और एक्सेप्ट ए मैसेंजर, एक्सेप्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। दोनों दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इसको हम क्या चीज़ इस्तेमाल, कैसे हम इसको ये जुमले में बनाते हैं। तो इसके लिए पैटर्न है माँ और इल्ला का। माँ नहीं के लिए इस्तेमाल होता है और इल्ला मगर के लिए। तो नथिंग बट, तो ये नहीं हो जाएगा माँ। तो हमने सिर्फ इसको जुमले में फिट करना है, बाकी जो भी जुमला होगा उसमें हम इसको फिट करेंगे, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी नथिंग बट, मगर। इल्ला का मगर मगर। जैसे एक एग्जाम्पल है कि मोहम्मद उन रसूलुल्लाह। तो ये जुमला इसमें आएगा, तो ये मौसूफ सिफा नहीं है, क्योंकि और रसूल नहीं है। रसूल इज कॉमन। तो जब भी प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन होता है तो जुमला
اسمیہ بنتا ہے، پہلا مبتدا ہوتا ہے، دوسرا خبر ہوتی ہے۔ تو محمد اور رسول اللہ، محمد ایک رسول ہیں، تو اگر ہم ما اور اللہ ہم نے کہنا ہے کہ نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، تو کیا ہم کریں گے؟ ما ماں محمد ما محمد الا رسول، اللہ رسول اللہ الا رسول، ما رسول محمد الا رسول۔ رسول اللہ۔ ہاں، تو اس میں اور کوئی چینج نہیں ہوتی، اگر رفع ہے رفع رہے گا، نصب ہے نصب رہے گا، تو اس میں یہ چینج نہیں کرتا ہے، نہ اس کو نصب کرے گا نہ جر کرے گا، صرف ما اور اللہ اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے اور ما محمد الا رسول بن جائے گا۔ تو یہ ایمفیسس، یہ نگیشن ہے، لیکن ایمفیسس کے لیے نگیشن ہے نا، کہ نہیں ہو محمد، نہیں ہے محمد مگر ایک رسول۔ تو اس طرح سے یہ بہت کامن ہے، اسپیشلی ان قرآن میں تو بہت ہی کامن ہے، تو آپ اس کو بار بار دیکھیں گے کہ یہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، یہ کہ ما اور اللہ کے ساتھ۔ دوسرا پیٹرن ہے ان اور اللہ، میننگ سیم ہے دونوں کی۔ یہ ان کا مطلب، ویسے ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ بے شک ہوتا ہے۔ نہیں، وہ تو انا ہوتا ہے نا، بے شک۔ ان اچھا اچھا ان ان کا مطلب اف ہوتا ہے نا، اگر۔ اگر تو یہ لائٹسٹ حروف میں آتے ہیں نا، ان لم لما والفلی، اچھا ہاں لیکن یہ ان کا میننگ اف نہیں ہے۔ اگر یہ ان اللہ کے ساتھ آ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب بھی نہیں مگر ہی ہے۔ تو یہ بھی استعمال ہوتا ہے ان اور اللہ۔ اس کی اگزامپل ہے کہ جیسے حاذا بشرن، کہ یہ ایک بشر ہے، یہ ایک بشر ہے، تو ان حاذا الا اللہ بشر، بشر۔ ان حاذا الا بشر۔ تو اسی طرح ان آپ شروع میں تھرو کرتے ہیں، اور پھر خبر سے پہلے اللہ، یا جس طرح سے بھی سینٹنس میں بنتا ہے اللہ یوز کرتے ہیں۔ اگر خبر نہیں ہے تب بھی یہ بن سکتا ہے، متعلق بالخبر کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، تو وہ ہم اگزامپل دیتے ہیں۔ یہ دونوں یہ جملہ اسمیہ ہیں۔ حاذا بشر ان کا مطلب ہے کہ یہ ایک بشر ہے، انسان ہے۔ ان حاذا الا بشر، یہ نہیں ہے مگر ایک انسان، نہیں نہیں ہے یہ مگر ایک بشر۔ اور اگر ان حاذا بشرون ہو تو پھر اگر کا میننگ کریں گے؟ ہاں، اگر ان کے ساتھ اگر اللہ نہیں آ رہا نا آگے، پھر اس کی میننگ ان کی میننگ اگر ہوگی۔ ان حاذا بشر ہوتا تو اس کا مطلب ہے اگر یہ بشر ہے، لیکن ان اور اللہ دونوں آپ نے، ان کے ساتھ اللہ آگے آئے گا کہیں، وہ آپ کو پھر اس کی میننگ یہ بنے گی۔ تو ان حاذا اللہ بشر۔ تو یہ دونوں اگزامپل تھیں جملہ اسمیہ کی، right؟ لیکن یہ جملہ فعلیہ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے کہ ینظرون صیحۃ واحدۃ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ینظرون کا مطلب تھا انتظار کرنا، نظر، یا انتظار کا نظر تو کون انتظار کر رہا ہے؟ کون ہے اس کا ڈوئر ینظرون کا؟ صحتن تو نہیں ہو سکتا، نہیں، ینظرون کا پروناؤن ڈوئر کیا ہے جو ان سائڈ ہوتا ہے اس کے اندر؟ اندر ہوم ہے نا۔ ہم ینظرون، ہاں جی، ہم ینظرون، تو وہ انتظار کرتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ صیحتن واحدتن، ایک بلند آواز کا، ایک جیسے چیخ کا صیحتن کہتے ہیں، بہت زور کی آواز جو ہوتی ہے، واحدتن ایک بلند آواز کا۔ اب اس کو ما اور اللہ اگر لگانا ہو تو کیا کریں گے؟ ما ینظرون ینظرون الا الا صیحتن صیحتن واحدتن۔ واحدتن۔ تو سورہ یاسین میں نا، ما ینظرون الا صیحتن واحدتن، تو میننگ پھر کیا بن جائے گی؟ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک زور کی آواز کا، زور کی آواز۔ ہاں، مگر ایک زور کی آواز کا۔ تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی اگر ہمارا جملہ فعلیہ ہے، یقولون کذیبا، اس کا میننگ کیا ہوگا؟ کذیبا جھوٹ کو کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، وہ جھوٹ کہتے ہیں، right؟ تو وہ جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ کہتے ہیں۔ اب ان اور اللہ جب اس میں لگائیں گے تو ان یہاں پہ آ جائے گا، اور این یقولون الا اللہ کذب، تو نہیں کہتے وہ مگر جھوٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو نہیں اور مگر کے ساتھ ہم نے سینٹنس بنا لیا۔ تو اب اس ان کو دیکھیں کہ یہ ان ویسے تو لائٹسٹ حروف میں تھا نا، ان لم لما والفلی، لیکن اس ان نے اس کو لائٹسٹ نہیں کیا، یقولون ہی استعمال ہوا ہے، یقولون ہی ہوا ہے۔ تو یہ ایک نشانی ہے کہ یہ ان اللہ والا ہے، تو اللہ آگے کہیں آئے گا، تو اس کو آپ اف والی ٹرانسلیشن نہیں ہوگی اس کی،
वो नहीं तो यकूलू होता है अगर इफ वाली ट्रांसलेशन होती। हाँ, हम्म तो इस ये लाइटेस्ट नहीं बनाता फेल को, ये वाला इन। तो ये इन और इल्ला दोनों कॉम्बिनेशन में होते हैं और लाइटेस्ट नहीं बनाता ये फेल को, और उसका मीनिंग हम करते हैं नहीं और मगर उसके अंदर थ्रो करना है। और ये कोई चीज़ चेंज नहीं करता जुमले में। जिस तरह से अगर पैटरा का कोई नसब है तो नसब रहेगा, रफ़ा है रफ़ा रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगी। जबकि माँ क्या करता था, खबर को नसब बना देता था। लैसा भी यही करता था। लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगी। माँ और इल्ला और इन और इल्ला दोनों दोनों के एक ही मीनिंग है। अब ये दो इस्तेमाल होते हैं तो फर्क क्या है दोनों में? तो दोनों में फर्क यही होता है कि एम्फेसिस, स्ट्रॉन्ग वे ऑफ सेइंग होता है। तो इन इल्ला जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्गर होता है, माँ कम होता है। माँ कम होता है। तो माँ होता है, आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे नहीं कहते, इन ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे। जैसे माँ यंजुरून इल्ला सहीयतम वाहिदतन, कि वो नहीं, वो इंतजार कर रहे मगर एक तेज आवाज का। अगर ई यंजुरून का फिर उसका स्ट्रॉन्गेस्ट मीनिंग हो जाता है कि नहीं वो इंतजार कर रहे मगर सिर्फ एक चीख का। या इन यकूलून इल्ला काज़िबा, कि वो नहीं कह रहे मगर सिर्फ सिर्फ झूठ। तो इन ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, उसमें आता है, सूरह यासीन में आता है ना। तो आप बहुत जगह पे आप देखेंगे कि इन इल्ला मा इल्ला दोनों बहुत कॉमन है। हम्म तो स्ट्रॉन्गर कौन सा है? इन वाला। इन इन वाला स्ट्रॉन्गर है, मा वाला थोड़ा सा उससे कम लेवल पे है। तो ये इसी तरह जैसे नेगेशन में स्ट्रॉन्ग और कम स्ट्रॉन्ग थे, इसी तरह ये इसमें भी दो दो पैटर्न्स हैं, जिसमें एक स्ट्रॉन्गर है और एक थोड़ा उससे कम है। तो इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये पूछना था कि कल्ला भी जो है वो नेगेशन में इस्तेमाल होता है। कौन से वाला? कल्ला। कल्ला डिफरेंट काइंड पे होता है कि आप बिल्कुल आप नेगेट कर रहे हो ना किसी पूरी बात को। पूरे सेंटेंस होता है ना, फिर एक सेंटेंस है आप कहते हैं कल्ला, कि हरगिज नहीं, कि ऐसे नहीं होगा बल्कि ऐसे होगा। तो कई दफा ये भी होता है कि आप पहले वाली बात नहीं भी कही हो तो आप कल्ला से शुरू कर सकते हैं कि हरगिज नहीं, ऐसे नहीं होना बल्कि ऐसे होना है। तो आप पूरा सेंटेंस ही होता है वो, आप उसको समझ लें कि आप रिप्लेस कर रहे हैं कि पूरी चीज को नेगेट करके फिर एक और बात बता रहे हैं कि नहीं ऐसे है। अल्लाह बल्ला कितनी कल्ला हम्म बल्ला तुकरीमुल यतीम, यानी हम्म कल्ला बल्ला तुकरीमुल यतीम में पीछे ये यतीम की कोई बात नहीं हो रही, लेकिन इसमें इसमें आ जाता है। ठीक है ना। इससे पिछली आयत कौन सी है? वम्मल वम अम्मल यतीम फामल फामल इंसानु इज़ा मबतलाहु अबू फकरमा नामा विक्रमन वम्माइका। फयकूलु रब्बी अहानन। उस ये तो उसने कहा ना कि मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। ठीक है ना, हम्म ये स्टेटमेंट तो ये उसने कही है। लेकिन आगे आता है कल्ला बल्ला तुकरीम थे, कि नहीं ये ना तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, लेकिन आगे कोई और ही बात हो रही है। हाँ, कल्ला होता है कि बिल्कुल आप उसको रद्द कर देते हैं, कि पूरी चीज को रद्द कर देते हैं, कि ये कहना बहुत ही गलत है, बल्कि ये है। कल्ला उस सेंस में इस्तेमाल होता है। तो ये नेगेशन जो ये वाली दो हैं, ये एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल होती हैं, कि मीनिंग, कोर मीनिंग वही रहता है जुमले का, लेकिन उसमें नेगेशन आ जाती है एम्फेसिस, एम्फेसिस के लिए। तो उसकी और प्रैक्टिस के लिए कुछ कुरान में से ही है। इन आना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। तो इसका मतलब क्या होगा? मैं सिर्फ एक जाने वाला डराने वाला मतलब नजीर मुबीन मुबीन वाजे वाज़े। वाजे डराने वाला। हाँ, इन आना इल्ला नज़ीर, मैं नहीं हूँ मगर एक क्लियर वार्नर, वाजे डराने वाला, वाजे वार्निंग देने वाला। इन आना इल्ला नज़ीर मुबीन, इसमें इन इस्तेमाल हुआ है। तो अब माँ नहीं आ गया, माँ अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना। नहीं नहीं तुम मगर एक इंसान हमारी तरह इंसान का। हाँ, नहीं हो तुम मगर मगर एक इंसान, एक बशर, मिसलुना हमारी हमारे तरह। हम एक तरह। तरह मिसल होता है मसाल जैसे होता है ना, कि तरह, हमारी तरह का। तो इसमें माँ इस्तेमाल हुआ। तो दोनों ये जुमला इस्मिया है, कौन सा जुमला या जुमला फेलिया है? ये तुम इसमिया है। दोनों इसमिया लग रहा है दसमिया है दोनों दोनों ही इसमें है इसमिया। ना, फेल है ही नहीं दोनों हम्म में, मान तुम। तो इसके अगर इन और इल्ला नहीं होता तो आना नज़ीरुम मुबीन था। हम्म अगर माँ और इल्ला ना होता तो अंतुम बशरुम मिसलुना। सुना तो अंतुम मुब्तदा होता है, बशरुन
मिसलुना उसकी खबर होती। एम्फोसिस के लिए फिर ये अलग हाँ है। जी, मा और इल्ला के लिए एम्फसिस। इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, नहीं नहीं तुम नहीं मगर तुम मगर झूठ बोलने वाले। नहीं, झुटला इसको आप पहले ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि नहीं तुम बोलते मगर झूठ, इस तरह से भी आप कर सकते हैं ना। अच्छा हाँ, तो मगर बोलते तकज़िबून का मतलब है कि झूठ बोलने झूठ वाले। बोलने वाले। तो नहीं तुम बोलते मगर झूठ, इस तरह से आप उसको आप फिट का आपने करना है कि उर्दू में आप फिट कैसे करेंगे उसको, नहीं कैसे आएगा और उसका वर्ब कैसे आएगा। आगे पीछे कर सकते हैं मतलब हाँ जी, इसको उर्दू में ना। तो कर सकते हैं ना। आपको मीनिंग समझ आ गई ना कि तुम तकसीबून का मतलब होता है कि तुम झूठ बोलते, यही मतलब है ना। तो आप अपने नहीं और मगर उसमें फिट करना है आपने। तो इसका इसका बेस्ट ये होता है कि आप पहले इन और इल्ला या मा और इल्ला हटा दें, उसके साथ तर्जमा कर लें सिंपल, और फिर आप देखें कि उसमें क्या कैसे फिट होता है। नेक्स्ट है इन हुआ इल्ला ज़िक्रुम व कुरआनुम मुबीनुन। नहीं वो मगर एक जिक्र है और कुरान वाज़िह। कुरान और वाज़िह। हाँ जी, नहीं है अगर ना, नहीं है। यहाँ तक आप सेपरेट कर लेना। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन, नहीं है मगर वो एक जिक्र, और याद दहानी। हाँ जी, एक याद दहानी, एक रिमाइंडर, व कुरान मुबीन, और वाज़े कुरान, क्लियर कुरान। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और नहीं है हम पर मगर पहुंचाना वाज़ेह। वाज़े तरह से पहुंचा देना, क्लियरली पहुंचा देना। तो इसमें और बाकी पिछली एग्जांपल्स में डिफरेंस क्या है? इसमें वाव है ना, वमा। नहीं, वमा तो है, और क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? मसूफ सिफा तो है ही है, वो तो कुरान मुबीन भी मसूफ सिफा, नज़ीरन मुबीन भी था। एक और डिफरेंस है, ये आखिरी वाले अलिफ का लाम है ना हाँ जी, दोनों में। आखिरी वाले में डिफरेंस क्या है बाकी जुमलों में? इसमें स्ट्रक्चर अल के हिसाब से, स्ट्रक्चर बलागुल। ये जुमला अच्छा फेलिया है या इसमिया है? फेलिया, शुरू में फेलिया। फेल कहाँ? फेलिया लग रहा नहीं है। जिसमें इसमिया है, इसमिया है। फेल तो नहीं है ना कोई, अलैना। तो जब इसमिया होता है तो आप उसके पार्ट्स करने हैं ना। तो मुब्तदा कहाँ पे? अलैना। अलैना मुब्तदा, मुब्तदा जार मजरूर तो नहीं होता है। दिस इज नॉट नहीं। मुब्तदा। डेफिनेशन क्या है? तो अल बलागु। अल बलागुल मुबीन है ना मुब्तदा, और खबर कहाँ पे? पहले पहला खबर क्या है फिर? अलैना खबर है, है ही नहीं। नहीं है ही खबर नहीं है ना, ही नहीं नहीं। है। खबर तो नहीं है। ये मुतालिक बिल खबर है, जार मजरूर। स्टिक टू द कल डेफिनेशन से आप देखा करें कि क्या चीज़ है। तो पहले जितनी भी एग्जांपल थी ना उसमें खबर थी। आना मुब्तदा था, नज़ीर मुबीन खबर, अंतुम मुब्तदा है, बशरुन खबर, फिर जुमला फेलिया आ गया, फिर हुआ मुब्तदा है, ज़िक्रुन खबर है। तो इसमें जो खबर नहीं है, लेकिन फिर भी आप मा और इल्ला और इन और इल्ला फिट हो सकता है, ठीक है ना। ये इसमें इस एग्जांपल में इसलिए मैंने ये वाली एग्जांपल दी है कि खबर होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी जुमला इसमिया होगा तो आप उसको फिट कर सकते हैं, उसको नहीं मगर के पैटर्न में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? नहीं है हम पर मगर वाज़े तौर पे पहुंचा देना। पहुंचा देना। तो इसमें भी आप माँ शुरू में आया है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि मुब्तदा से पहले ही आना चाहिए। आप माँ को आप शुरू में ही आएगा और दरमियान में इल्ला आएगा। तो इल्ला इसमें मुब्तदा से पहले आ गया, ये फ़र्क है। बाकियों में इल्ला जो है खबर से पहले आ रहा था। और एग्जांपल है वमा नरा का इल्ला बशरम मिसलना। हम नहीं इसका मतलब था हम देखना। देखते देखते। हम देखते। तो रा देखना, वो देखता है, नरा हम देखते हैं। हम देखते हम देखते हैं किसको? नहीं हम देखते मगर नहीं एक हम इंसान। देखते इल्ला मगर बशरिन इंसान हम मिसलुना, हमारी तरह का। हमारे तरह के लेकिन आपने ये इंसान। नहीं बताया कि किसको नहीं देखते। आपको बशर नहीं, बशर तो रसूलुल्लाह नहीं है ना। तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि को नहीं देखते। रसूल का का है मफूल ना। हाँ जी, अंता तो को हाँ, तो का। मफूल भी ही ये है कि हम नहीं देखते आपको मगर एक बशर मिसलाना, हमारी तरह का, हमारे जैसा। तो ये मफूल भी ही उसका
याद रखना है कि किसको नहीं देखते। तो मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, कि हम आपको नहीं देखते मगर एक बशर हमारी तरह के। इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलम मसहूरा, नहीं तुम पैरवी करते नहीं मगर एक इंसान की जो सूर रजुलन मतलब महसूरा मसहूरा मशहूर होता है जिसपे जादू सहर हुआ हो, सहर सहर जदा जो हुआ होता है ना। सहर जदा हाँ जी, साहिरा यसहरु होता है ना, फिर उसका साहिरुन उसका इसम फाइल है, और इसम मफूल क्या बनेगा, मसहूर मशहूर है ना, जैसे मसऊदुन मंसूरुन, तो ये मसहूरुन, तो ये मसहूरन जिस पे जादू हुआ हुआ वो मसहूर होता है, जो जादू करता है वो साहिर होता है। तो इन तत्ताबिऊना, तो तत्ताबिऊना अंतुम है, ठीक है, अंतुम नहीं तुम पैरवी कर रहे पैरवी कर मगर एक आदमी की। इंसान इसको अब सहरजदा आदमी कर लें ज्यादा बेहतर है, रजुल आदमी जो सहरजदा है, सहरजदा आदमी। तो अगर इन और इल्ला ना होता तो क्या मीनिंग होती है कि तुम पैरवी कर रहे तुम हो, पैरवी करते करते हो वो एक एक करते हो एक सहरजदा आदमी। इंसान आदमी की आदमी की। इन और इल्ला लग जाएगा तो फिर नहीं तुम पैरवी नहीं तुम करते मगर पैरवी एक कर सहरजदा मगर इंसान की। हम्म, इतना वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, नहीं हमने भेजा आपको भेजा मगर एक आपको मगर एक खुशखबरी इंसान देने वाला और डराने वाला। मुबश्शिरन हाँ नज़ीरा मुबश्शिरन डरा खुशखबरी देने वाला, खुशखबरी बशर, देने वाला हाँ हाँ जी, बशरा नज़ीर युबश्शिरु तबशीरन फहुवा मुबश्शिरुन, हाँ मुबश्शिरुन खुशखबरी देने वाला, व नज़ीरन और वार्निंग देने डराने वाला। तो वमा अरसलनाका, अगर वमान और इल्ला ना होता तो अरसलनाका मुबश्शिर, अरसलना का तो ये उसको एम्फेसिस करने के लिए है कि नहीं भेजा हमने मगर, नहीं भेजा हमने आपको मगर खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। तो अगर इल्ला ना होता तब भी वो नेगेशन थी, लेकिन इल्ला नहीं, अगर 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 इल्ला ना होता तो फिर ये वैसे ही उसने नेगेशन बन जानी थी, फिर तो उसकी मीनिंग ही डिफरेंट हो जानी थी। हमने आपको मुबश्शिरन और नज़ीर नहीं भेजा है, फिर तो इल्ला तो आना ही नहीं था, फिर तो वो माजी वाली नेगेशन बन जाती जो हमने मा और लम्स वाला से सीखा है। इसमें भी अंता होगा ना, ये अरसल ना का जो का को हम अंडरलाइन करें तो नहीं, ये का भी अंता। अंता है लेकिन अरसल ना अच्छा तो अंता नहीं है ना। नहीं 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 का हाँ जी, वचन का तो हाँ, अंता ही है, हाँ जी। अंता ही है ना तो जी। अरसल ना क्या है फिर, हमने भेजा आपको हमने भेजा ना नाहनु, नाहनु है ना, नहनो है अच्छा हाँ नाहनु। नहनो। इन यत्ताबिऊना इल्ला ज़न्न, तो ऊपर तत्ताबिऊना था, अब यत्ताबिऊना है, नहीं वो पैरवी करते अब मगर एक ये गुमान की। इल्ला हाँ गुम है, हाँ को जी। मान के तो जन होता है थॉट के, गुमान, तो नहीं पैरवी करते वो मगर गुमान की, एक गुमान की। एक गुमान की। इसकी रनिंग ट्रांसलेशन कैसी होती है? नहीं वो पैरवी करते मगर एक गुमान की, रनिंग ऐसी होती। इसमें जब आप आयत में आप तर्जमा करेंगे ऐसे ऐसे ही होगा। लास्ट एग्जांपल है वमा आमना माहू इल्ला कलील, और नहीं ईमान लाए उसके वमा साथ और मगर बहुत नहीं थोड़े। हाँ, तो नहीं ईमान लाए, कौन ईमान लाए, डूअर क्या है इधर, ईमान ला ईमान हम आमनू होता तो हम होता है ये ना, तो नहीं नहीं आमना क्या, नहीं तो ये लाइट नहीं हो गया। हुआ नहीं ये तो माजी है ना, आमना लाइट है नहीं ना है, हाँ मना हुआ, ये हुआ वर्जन तो नहीं हुआ वर्जन है नहीं ना, आमना हाँ हाँ युमिनु है ना, हाँ आमना युमिनु आमना ईमानन फहुवा आमिनुन मुमिनुन, मुमिनुन है ना, अस्लमा फैमिली मुमिनुन। तो वमा आमना माहू नहीं ईमान लाए, लाया। है तो लाया है ना, वो है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब माँ और इल्ला के बगैर इसकी ट्रांसलेशन करें, क्या होगी, वो माँ और ईमान इल्ला को लाया निकाल उसके दें, साथ। वो ईमान नहीं लाया उसके साथ। इल्ला कौन, नहीं हाँ वो हम ईमान, लोग ईमान नहीं लाए। वो ईमान लाया उसके उस पर साथ। उस पर अब कलीलुन क्या है, वो तो थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा थोड़े हैं, लेकिन उसको आप क्या कहाँ पे रखेंगे जुमले में, वो थोड़े ईमान वो थोड़ों में से ईमान लाया, नहीं नहीं बहुत थोड़ा में से वो लाया। ईमान लाया उसके साथ आमना का नहीं कलीलुन, आपको उसकी वो स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा ना कि कलील वो क्या हाँ उसका मफूल है, कौन सा मफूल है जी। आमना का मफूल क्या हो सकता है कि कौन ईमान लाया, किस पे ईमान लाया, सही ये होगा ना, किस पे ईमान लाया, क्या ये कलीलुन किस पे ईमान लाना है? वो थोड़ा ईमान लाया उसके साथ।
right? नहीं वो आमना का तो मफूल भी माँ होगा। मफूल भी एक तो माँ हो गया ना कि कौन ईमान लाया, तो कोई किस पे ईमान लाया, राइट। तो कौन कौन से पर्सन और किस पे, हु माहू उसके साथ है ना, ये तो यहाँ पे मुतल क्वांटिटी की बात होती है। नहीं। कलीलोन आपको फिट कैसे करेंगे ना तर्जुमे, कलीलोन हाँ रफा है, कलील रफा क्या से होता तो है? ये तो फाइल है। ईमान लाए हाँ जी, उसके तो साथ, वो नहीं होगा ना, फिर थोड़े लोग ईमान लाए उसके साथ, है ना। थोड़े लोग ईमान लाए। थोड़े लोग ईमान लाए उसके साथ, तो आप उसको नेगेट करेंगे ना, वमा आमना माहू इल्ला कलील। अब आप उसको दूसरी तरह कर सकते हैं कि नहीं ईमान लाए उसके साथ मगर थोड़े लोग, हाँ Okay. ठीक है ना। अब आमना आप एंड पे ईमान का आपने ईमान अलग कर दिया, और उसका जो डूअर है वो बाद में लाना पड़ा, क्योंकि उर्दू में ऐसे ही बनता है ना जुमला है, उर्दू में आप इकट्ठा नहीं रखते उसको। तो आप इसको फिर उर्दू में करने के लिए अगर इसकी नेगेशन करेंगे ना, बहुत कम लोग ईमान लाए उसके साथ, तो इसको आप नहीं और मगर में ट्रांसलेशन करनी है, तो आप इसको कैसे फिट करेंगे नहीं और मगर को? आपको ये कहना पड़ेगा नहीं ईमान लाए उसके साथ मगर थोड़े लोग, राइट। तो थोड़े लोग एंड पे लेके जाना पड़ेगा, तो ये उर्दू में आपको थोड़े से उसको चेंज करना पड़ेगा उसका सीक्वेंस। तो ये कलीलोन जो है ये इस ये आउटसाइड डूअर है ना आमना का, कि कली ईमान कौन लाए कलील। तो आमनू क्यों नहीं आया? तो आउटसाइड डूअर में आमन यूज होता है, हुआ या यही होता है, आमन हु क्यों आएगा? कलीलोन आमना तो आमना आमना ये broken मुस्लिमूना भी आ सकता है, ब्रोकन प्लूरल की बात नहीं हो रही। जब भी आउटसाइड डूअर, आप डेफिनेशन पे जाए ना वापस, असल डेफिनेशन क्या होती है आउटसाइड डूअर की? आमना का मतलब है कि वो ईमान लाए, वो ईमान लाए। लेकिन अगर उसके बाद रफा आ रहा हो तो फिर वो की जगह वो वाला वर्ड इस्तेमाल होता है, ये फाइल है बहुत कलील, कम ईमान लाए। बहुत कम ईमान लाए। अब वो खत्म हो गया ना, वो नहीं है, बहुत कम ईमान लाए। मगर आमना तो सिंगल है ना, और कलील ज्यादा लोग हैं। नहीं, ऐसे ऐसे ही होता है ना, हमेशा हमेशा ऐसे ही होता है। ग्रुप के लिए नहीं यही तो लेकिन पैटर्न है, नासारा मुस्लिमूना ही हम कहते हैं। लेकिन चाहे ये जो खलील जो चाहे है, एक हो, चाहे दो हो, चाहे 10 हो, आप नासारा ही यूज करेंगे या नासारत इस्तेमाल करेंगे, हुआ या हिया इस्तेमाल करते हैं ना, यही रूल है ना। आगे लेकिन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो। नसारा मुस्लिम। It's not like लेकिन where you have to match every हाँ जी, property. ठीक है ना। नासारा मुस्लिमून सिर्फ अपने जेंडर मैच करनी होती। अगर मैं नासारा कहूँ इसका मतलब क्या है, वो उसने मदद की। अब नासारा कलीलून अगर होगा तो किसने मदद की? थोड़े लोगों ने थोड़े मदद लोगों ने की। मदद की। तो सेम इसी तरह ये है कि आमाना कलीलून, थोड़े लोग ही मान लें, सेम उसी तरह है वो, इसमें कोई नई चीज नहीं है, सेम पैटर्न। लेकिन ये ईमान के लिए है कि ईमान मुख्तसर लाए या थोड़ा लाए, या नहीं लोगों की नहीं नहीं बात नहीं, हो रही है? लोग कम ज्यादा, लोग। क्वांटिटी की है। हाँ जी, ईमान थोड़ा ज्यादा नहीं है, बल्कि कलीलुन उसका फाइल है। अगर ईमान होता ना कि कितना लाए, तो फिर ये नसब आता है, फिर ये रफाना आता है, ओके। फिर उसका मफूल बन जाता है कि किस तरह का ईमान लाए, कैसा ईमान लाए। ये मफूल बन जाता है उसका, क्या कहते हैं उसको, हाँ, कलीला होता फिर। हाल कहते हैं ना। हाँ जी, अगर कलीलन होता, कलीला, बिल्कुल, तो फिर उसका वो मफूल बनता है। लेकिन क्योंकि ये रफा है ना, तो इसलिए ये उसका डुअर है। तो आमना माहू कलील का मतलब है कि बहुत थोड़े लोग उसके साथ ईमान लाए। तो ईमान लाने का डुअर कौन है? कलीलुन। हम्म, हाँ, ईमान लाने का डुअर कौन ईमान लाया? कलीलुन ईमान लाया। तो हम्म, जब हम इसको नहीं मगर करेंगे तो हमें उर्दू में इसको थोड़े लोगों को एंड पे ले जाना पड़ेगा, नहीं ईमान लाए उसके साथ मगर कम लोग, तो कम लोग को एंड पे ले जाना पड़ेगा। जस्ट टू उसकी मीनिंग को आप करने के लिए उर्दू में हम ऐसे लिखते हैं ना, तो अरबी में तो वमा आमना माहुल्ला कलीलुन लिखा है। तो ये जुमला फेल लिया, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। इसमें आपने ये देखे ना, आप पहले जितने हमने किए हैं ना, ये नरा का, इसमें क्या है, ये मफूल हैं सारे, नसब नसब तत्तबिऊना, रजुलम मसूरा नसब है, अरसल ना, ये सारे असल में थे भी, ये हुआ ही वर्जन तो थे ही नहीं ना, इसके साथ तो आ भी नहीं सकता है आउटसाइड डूअर। अरसल ना का मफूल क्या था? मुबशिरन नज़ीरन, नसब है। इन यत्तबिऊना इल्ला जन्ना, जन्ना भी नसब है। और क्या था? और तो कोई एग्जाम, बाकी तो सारे जुमले इसमिया हैं। तो सिर्फ ये एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है कि जिसमें
آمنا استعمال ہوا ہے ہوا ورژن، اور اس کا آؤٹ سائڈ ڈور بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ اس طرح سے ڈفرینٹ ایگزامپل ڈفرینٹ ہے، لیکن رول وہی ہے. آپ نے اس کو ما اور اللہ کے بغیر ٹرانسلیٹ کریں پہلے، پھر وہ ما اور اللہ آپ اس میں فٹ کر دیں، تو اس سے پھر آپ کا وہ ترجمہ انشاءاللہ وہ بن جائے گا اس طرح سے. جسٹ پریکٹس کی ضرورت ہے. آپ پڑھیں، آپ بہت زیادہ نظر آئے گا آپ یہ، پھر آپ اس پہ غور کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوا ہے. یہ تقریباً بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو کوئی اور کوشچن ہو اس میں؟ تو ایک نیگیشن میں ایک اور ٹاپک رہ گیا ہے، انشاءاللہ کل کریں گے، پھر ہمارا یہ ایک چیپٹر فنش ہو جائے گا، پھر ہم آگے انشاءاللہ چلیں گے اور کچھ پریکٹس اور کریں گے. جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. دعا کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. سبحانک اللہم وبحمدک، عدد خلقک ورضا نفسک وزنة عرشک ومداد کلماتک. اللہم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واہدنا وعافنا واعف عنا. اللہم انا نعوذ بک من ضیق المقام یوم القیامہ. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتون. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات. اللہم انا نعوذ بک من یوم السوء ومن لیلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.